breaking news coming in at the broadcast. A massive avalanche has occurred near the Border Roads Organization camp in border area of Mana, in which 57 workers engaged in road construction have now been trapped. Out of these workers, 10 workers have been rescued and sent to the army camp near Mana in critical condition. Meanwhile, BRO, the Border Roads Organization Executive Engineer C.R. Meena, said that 57 workers were present at the spot. Remember, only 10 workers have been rescued. The remaining of them are currently to be located. 3 to 4 ambulances have also been sent out, but due to heavy snowfall, the rescue team is facing difficulties in reaching them. So out of all those 57 workers, we're given to understand about 10 workers have been rescued. Remainder 47 are still trapped. And now this after a massive avalanche happened and occurred near Badrinath in a Border Roads Organization camp in the border area of Mana. As I mentioned earlier, 57 workers were engaged in road construction activity at that point in time. Out of these workers, about 10 workers have been rescued. They have been sent to the Army Camp Hospital in Mana. They are in critical condition. Meanwhile, BRO, the Border Roads Organization Executive Engineer C.R. Meena, informed that 57 workers were present. 3 to 4 ambulances have been sent out, but due to heavy snowfall, the rescue team is facing difficulty to reach the trapped workers. That's the latest coming in as far as Badrinath is concerned. A massive tragedy there by the way of an avalanche, a natural disaster that has occurred near the Border Roads Organization camp. This happened while construction workers were engaged in building roads, and an avalanche hit, post which about 10 workers were rescued. Remainder are still to be located. Those are the preliminary details we are getting for you as far as the rescue operation is concerned. It's currently underway. Ambulances are trying to reach those trapped workers. The BRO executive engineer has said that 57 workers were present at the spot. On your screens right now, about 50 workers, 47 of whom are trapped. 10 workers have been rescued. Glacial burst in Badrinath Dham resulted in that disaster. A massive avalanche near the border has resulted in 57 workers currently being rescued. So my colleague Abhijit is joining us live. Abhijit, 47 वर्कर्स बताए जा रहे हैं कि अभी भी ट्रैप्ड हैं, 10 वर्कर्स रेस्क्यू किए जा चुके हैं। क्या स्थिति है वहां पर? के मुताबिक जो हमें जानकारी प्राप्त करी, उसमें 57 मजदूरों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है, जिसमें से कि 16 मजदूरों को रेस्क्यू कराया गया है। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भारी बर्फबारी के कारण एनडीआरएफ को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि सेना की मदद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए लिया जा सकता है। फिलहाल अपडेट है उसमें 3 मजदूर जिनको रेस्क्यू कराया गया था, 16 में से 3 मजदूरों की गंभीर स्थिति में होने की बात बताई जा रही है, जिनको कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो ये एक बड़ी घटना जो है हिमस्खलन की वो सामने आ रही है। बद्रीनाथ के पास माना गांव है, वहां के पास ये उसी जगह के गांव के पास में ही ये हादसा जो है वो हुआ है, जिसमें कि कुल 60 के आसपास की संख्या, आप जो ताजा अपडेट आ रही है उसमें कि 60 के आसपास लोगों के फंसे होने की बात बताई जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और इसके आगे की जो अपडेट है वो वहां के जो अधिकारी हैं वो जल्द ही देंगे। जी, और अधिकारियों का क्या कहना है इस वक्त? अभिजीत, कितने लोग ट्रैप्ड हैं, कितने लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं? आप बता रहे थे कि 47 लगभग 50 लोग ट्रैप्ड हैं, 60 लोग काम कर रहे थे। क्या एम्बुलेंसेस उन तक पहुंच चुकी हैं? जी नहीं, यही तो सबसे बड़ी मुश्किल जो एनडीआरएफ के सामने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है टीम, उसके सामने है कि भारी बर्फबारी के कारण वाहनों की एंट्री नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाएगा, और उसके लिए आर्मी की मदद लेने की भी बात कही जा रही है। अभी तक तो मैनुअली लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए ऑपरेशन जो है वहां पर चलाए जा रहे हैं। जहां तक रेगुलर जो एक्सेस है वहां तक गाड़ी जो है वो पहुंच पा रही है, लेकिन उसके आगे एम्बुलेंस का एक्सेस नहीं है, जो कि इसलिए लोगों को मैनुअली रेस्क्यू कराकर और फिर आगे एम्बुलेंस में शिफ्ट करके उनको हॉस्पिटल के लिए लेकर जाया जा रहा है। लेकिन जैसे कि अभी जानकारी सामने आ रही कि एयर रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी ही वहां पर चलाया जाएगा। लोगों को जल्दी से जल्दी निकालने के लिए जो संख्या है उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि पहले जो संख्या वो 50 के आसपास बताई जा रही थी, लेकिन अभी जो सबसे ताजा अपडेट है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 60 के आसपास लोगों की संख्या यानी 60 लोगों के ट्रैप्ड होने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है।
और जो अधिकारियों का कहना है कि चूंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को खासी परेशानी हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में, इसलिए संभव है कि कुछ ही देर में आपको ये अपडेट भी सामने आए कि आर्मी की मदद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में लिया जाएगा, क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल में ही जो घायल हुए हैं उनको शिफ्ट कराया गया है, जिनमें कि तीन की हालत जो है वो क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। जी, 3 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। लगभग 60 लोग अभी भी ट्रैप्ड हैं। दैट्स द लेटेस्ट कमिंग इन एज फार एज that rescue operation is concerned. On your screens right now, visuals coming in from Chamoli. A heavy snowfall has blanketed parts of Uttarakhand. A glacial burst near Badrinath has resulted in that tragedy where after that tragedy, 55 workers were trapped under snow on the national highway in Uttarakhand as an avalanche took place in Badrinath following heavy snowfall. The incident took place in the national highway connecting Mana to Ghastoli in the state. Mana is of course a village and which is where these workers were trying to build roads. They are part of the Border Road Organization. अभिजीत continues to be with us. अभिजीत, काफ़ी स्नोफॉल है जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है। एरिया में काफ़ी स्नोफॉल है, एक डिफ़िकल्ट टेरेन माना जाता है, यहाँ पर रेस्क्यू कर पाना आसान नहीं है, खासकर पहाड़ी सड़कें सिंगल रोड होती है, दो तरफा गाड़ियाँ नहीं चल पाती हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन होता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। बिल्कुल, और यही कारण है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के सामने इस वक्त है वो यही कि मौसम की खराबी जो है, लगातार बर्फबारी और मोटी बर्फ की जो परत है वो भी जमी हुई है, तो उसमें सबसे मुश्किल काम होता है कि बर्फ को हटाना और फिर जो फंसे हुए लोग हैं उनको उसमें से निकाल पाना, जबकि गाड़ी भी उस जगह के आसपास तक आसानी से नहीं पहुंच सकती। और यही कारण है कि अधिकारियों की जो बैठक वहां पर चल रही है उसमें इसी बात पर विचार किया जा रहा है कि आर्मी की भी मदद इसमें ली जा सकती है क्या। हालांकि चूंकि लगातार बर्फबारी के बीच किस तरीके से ऑपरेशन आगे बढ़ता है उस पर अपडेट आना अभी तक बाकी है, लेकिन मुश्किल हालात में ये ऑपरेशन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है अभी तक की जानकारी के मुताबिक वो उस जगह पर मौजूद है और 16 के आसपास लोगों को रेस्क्यू कराया भी गया है। लगातार ये ऑपरेशन जारी है और लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभिजीत, क्या हम कंफर्म कर सकते हैं कि 16 लोग रेस्क्यू हो चुके हैं? अभी तक हम बता रहे थे कि 10 लोग रेस्क्यू हुए हैं, 16 वर्कर्स रेस्क्यू हो चुके हैं। ये जिस तरह से हमारी बातचीत हुई, हमारे जो आधिकारिक सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी सामने आ रही है कि कुल 16 लोगों को रेस्क्यू उसमें से कराया गया, जिसमें से कि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है जिनको आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। तो जो ताज़ा अपडेट है उसमें रेस्क्यू किए गए लोगों की संख्या 16 जो है वो जानकारी पुष्टि जो है वो अधिकारियों के द्वारा की गई है। क्या ये पुष्टि हुई है कि टोटल कितने वर्कर्स थे वहाँ? देखिए, ये संख्या का जो है असेसमेंट वो किया जा रहा है, लेकिन जो हमारी बातचीत हुई है उसका कहना है कि 60 के आसपास वो संख्या बताई जाती है, यानी कि 60, तो जिसमें कि 57 लोग जो है वो ट्रैप्ड होने की बात अभी तक जो है वो सामने आ रही है। तो कुल 60 जो संख्या है लेबरर्स की वो वहां पर काम पे लगे हुए थे, जिसमें कि सुपरवाइजर भी होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, तो तमाम तरह के जो वर्कर्स होते हैं जो ऑन साइट अवेलेबल होते हैं, तो उनकी संख्या ये अभी तक बताई जा रही है। हालांकि इसमें और भी अपडेट जो है वो आगे सामने आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डे टू डे बेसिस पर भी जो बीआरओ है वो मजदूरों को कई बार हायर करती है इस तरह के काम में, क्योंकि जिस तरह के हालात हो, इस तरह के टेरेन में कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन हो या किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बहुत ज्यादा मैनुअल लेबरर्स की जरूरत होती है। तो जो पूरी संख्या है वो कुछ देर में ही अपडेट हो पाएगी, लेकिन अभी तक की जो जानकारी जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई उसके अनुसार 57 लोगों के ट्रैप्ड होने की बात कही जा रही थी, जिसमें कि 16 लोगों को रेस्क्यू कराया गया। यानी कि अगर अभी की हम संख्या की बात करें कितने लोग उसमें ट्रैप्ड हैं, तो 40 से ज्यादा लोग उसमें ट्रैप्ड होने की बात अभी फिलहाल वो जो है वो बता रहे हैं। ओके, अभिजीत बने रहिए हमारे साथ फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज व्यूअर्स हु आर जॉइनिंग अस ऑन द शो राइट नाउ। ओवर 60 workers in fact were working on the national highway when an avalanche hit in Badrinath Dham following heavy rainfall. The incident took place on the national highway connecting Mana village to Ghastoli in the state of Uttarakhand. As many as 57 workers to about 60 workers were trapped. The latest that we have is that 16 workers have been rescued successfully. The Administration and Border Roads Organization teams have rushed to the spot. We are yet to confirm whether they have been able to reach all the trapped workers. The workers, we are given to understand, were employed by private contractor for border construction. That contractor perhaps was a part of the Border Roads Organization. So BRO there working, and along with the Disaster Management Authority working to evacuate those nearly 40 workers who are still
trapped. The glacial collapsed onto a river after heavy snowfall in the area. Over the last 48 hours, there's been continuous snowfall in the state of Uttarakhand. The construction site near the glacier have suffered significant damage. About 40 workers are still believed to be trapped. Out of the 60 workers, about 16 workers have been rescued. That's the latest coming in. My colleague Abhijit continues to be with us, getting us all the latest details on that glacial collapse and the avalanche that hit Badrinath this आफ्टरनून। अभिजीत, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कोई अपडेट है इस वक्त आपके पास बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से? कितने लोग ट्रैप्ड हैं, कितने लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से क्या पता चल पा रहा है कि क्या अपडेट है? अभी तक जो ताजा अपडेट मिल रहे हैं उसमें अपडेट यही सामने आ रही है कि अभी जो ऑन साइट यानी कि स्पॉट पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं उसमें जो बीआरओ की टीम होती है, उसके अलावा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर मौजूद है। लेकिन जो इस पर भी विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से अब इसमें आर्मी को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है क्या, क्योंकि जो हेवी ग्लेशियर के टूटने के बाद ये घटना हुई है और कंस्ट्रक्शन साइट जिस जगह पर थी वहां पर बर्फ का जो ग्लेशियर का जो हिस्सा था वो खिसक कर आ रहा, जिसके नीचे मजदूर दब गए। तो एक मोटी परत के नीचे तमाम मजदूरों के दबे होने की बात जो है वो सामने आ रही है और ऐसे हालात में बहुत मुश्किल हो जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना, खासकर तब जब बर्फबारी भी हो रही हो। तो ऐसे हालात में अभी अधिकारियों की सबसे पहले प्रायोरिटी है कि जो लोग ऑन साइट अवेलेबल हैं, जो वहां पर मौजूद हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखें। जितनी कोशिश हो सकती है मैनुअली, और जो मशीन वहां पर उपलब्ध होते हैं, जेसीबी मशीन होती है, उनसे बर्फ के परतों को हटाना। लेकिन चूंकि उसके नीचे लोग दबे हुए हैं, इसकी वजह से बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ रहा है। तो अब इस बात पर अधिकारी भी इस बात पर निर्णय लेंगे कि क्या इसमें आर्मी को भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ज्यादा लोगों की जानों को जोखिम हो सकता है। तो इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा। अभी से अगर मैं बात करूं तो लगभग 15 मिनट पहले हमारी एक अधिकारी से बात हुई जो कि इसी क्षेत्र में डिप्लॉयड है। तो उनका यही कहना था कि अपनी तरफ से पूरा प्रयास जो है, जो वहां पर जो टीम अवेलेबल है वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इसमें मतलब रेस्क्यू करा सके। सुबह की ये घटना है और अभी तक ऑपरेशन जो है ये जारी है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वो वर्कर्स जो है वो काम कर रहे थे। हालांकि मदद भी तुरंत वहां पर पहुंची। पहले से ही अगर बता दें मौसम को लेकर तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट था, जिसमें कि भारी बारिश और बर्फबारी की बात भी कही जा रही थी और वो आगे चलकर सही साबित हुई और इसकी वजह से ही ये ग्लेशियर टूटने की घटना भी जो है वो बताई जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि कितनी जल्दी इनको रेस्क्यू कराया जा सकता है। फिलहाल अगर हम ताजा अपडेट के हिसाब से बात करें तो 41 के आसपास मजदूर और उसके अंदर फंसे हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। जी, all right, those are the latest numbers as far as that unfortunate tragedy is concerned that happened this morning. A glacier blast in Uttarakhand triggered an avalanche in Badrinath Dham, and over 60 workers who were working there were trapped. Out of those 60 workers, about 16 workers have been rescued. 2 to 3 of those workers are currently in serious condition. They have been rushed to the hospital. They are being tended to, but remainder 47 to about 50 workers are still under the snow. It is a very precarious situation for those who are trapped there right under the snow, which essentially means that not all heavy equipment can be utilized for rescue operation. ITBP and BRO are trying to engage in rescue operations. However, it is tricky because they are trapped under the snow, so no heavy equipment can be utilized without trying to really harm those who are trapped under the snow. A very, very difficult situation